আমি এটি বাৰ্তা পঠাব বিচাৰিছোঁ। সেই বাৰ্তাটো হৈছে আপুনি 20 আৰু 21 চনৰ যি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, তেখেতে যিটো আমাক 2000 আৰু 1000 টকা বঢ়াইছিলে, সেই টকাটো নিদিলে আমি গুৱাহাটীত এটা গঁৰালত সোমাই পেলাই আমি চিঞৰি আছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ দুখ নুবুজিলে, কেৱল আমাক খেদিলে। কিন্তু সেই টকাটো নিদিলে বৰঞ্চ আকৌ তাৰ পৰা 250 টকা কমাইহে আমাক এতিয়া 1 অক্টোবৰৰ পৰা দিম বুলি আমাক মন ভালেই লগাইছে। কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি চাওক, আপোনালোকৰ ঘৰত কৰ্ম কৰা পাৰ্ট টাইম কাম কৰা মানুহগৰাকী দৰমহা কিমান সেইটো আপোনালোকে ভাবি চাওক। কিন্তু আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অন্ততঃ 8টা বজাৰ পৰা ফেচ কেপচাৰ ল'বলৈ যাওঁতে আৰু হোম ভিজিট কৰিবলৈ যাওঁতে কৰ্মীৰ লগতে সহায়িকাও যাব লাগিব, মোবাইলৰ নেট নেপায়, বাৰী চুকে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব। তেনেকৈ কৰোঁতে 2টা-3টা বাজি যায়, অলৰেডি গোটেই দিনটোৱে পাৰ হয়। কিন্তু গোটেই দিনটো পাৰ হোৱাৰ ফলত আমি পাওঁ কিমান? 8000 আৰু 4000 টকা, 1500 আৰু 750 টকা বঢ়াই তেখেতসকলে আমাক মানে অনাধানক পতান ধান যাচিছে। আমাক মন ভালেই লগাইছে, সুখবৰ। সিদিনা লখিমপুৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি নিজেই স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ। তেখেতে ক'লে, আপোনালোক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা হ'ব 1 অক্টোবৰৰ পৰা ভাল খবৰ। কিন্তু কি ভাল খবৰ? 750 আৰু 1500 টকা ভাল খবৰ। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ আমাক সেইটো ভাল খবৰ নালাগে, আমাৰ কৰ্মীৰ 15000, সহায়িকা 10000 টকা আমাক দিয়াটো নিশ্চিত, নহ'লে আমি আৰু ডাঙৰ জংকী আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিম। তাৰ পৰিৱৰ্তে আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে, বিশেষতে কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত বয়সৰ সীমা নাই। আমি 2012 চনৰ পৰা আমি বয়সৰ সীমাটো, সহায়িকাসকলৰ বয়সৰ সীমাটো উঠাই দিয়ক, এনেধৰণে চিঞৰোতে আজিলৈকে সেইটো বয়সৰ সীমা নল'লে। কৰ্মীগৰাকী যেতিয়া প্ৰমোচন হ'ব, সহায়িকাগৰাকীয়ে অলৰেডি পোষণ টেকা সম্পূৰ্ণ কাম কৰিব লাগিব, কেন্দ্ৰ মিটিং ভিজিট কৰিব লাগিব, গাঁৱলৈ মানে ফেচ কেপচাৰ ল'বলৈ যাব লাগিব। সিমানখিনি কামতো এতিয়া কৰ্মীৰ আধা দৰমহা সহায়িকাক দিয়ে। কি কাৰণে? আমিতো কৰ্মীৰ তুলনাত 80%, কৰ্মীৰ 100%, সহায়িকা 80% দাবী কৰি আছিলোঁ। তেখেতসকলৰ টকা নাই, বুজিছোঁ, তেখেতসকল আমাৰ চৰকাৰ দুখীয়া হৈছে, কিন্তু আমাক 75% দিয়কচোন। আমাক ইমান অন্তৰত দুখ দিব নালাগে। কি কাৰণে আমাক আধা দৰমহা দিয়ে আৰু বয়সৰ সীমাটো দিনে ৰাতিয়ে উঠাই দিবলৈ কওঁতে এতিয়া বয়সৰ সীমাটো উঠাই দিয়া নাই। গতিকে আমি এই বৰদলৈ প্ৰকল্পৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আমি কৈছোঁ, চিঞৰি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে সহায়িকাসকলৰ বয়সৰ 45 বছৰ বয়সৰ সীমাটো উঠাই দিয়ক। যিহেতুকে কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত এই বয়সৰ সীমা নাই। আজি যদি এজন শিক্ষকে যদি এবছৰ দিন যদি এছিষ্টেণ্ট থাকে, হেডজন যদি অৱসৰ লয়, এবছৰ দিন হেডৰ মানে পোষ্টত খাটি দিয়ে, হয়নে নহয়? আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সহায়িকাসকল ইমান মানে মানুহ নহয় নেকি? তেখেতৰ মনত সহায়িকাসকল মানুহ নহয় নেকি? বৰ দুখ লাগে। গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ক ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে যাতে বয়সৰ সীমাটো উঠাই দিয়ক আৰু কৰ্মীৰ তুলনাত সহায়িকাক 80% দৰমহা দিয়ক। আৰু মুঠতে এইখিনি যদি আমাক কৰি নিদিয়ে 25 চনত, 26 চনত আমি জংকী আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। হয় বাইদেউসকল, শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছে। কিন্তু সহায়িকাসকলৰ এই দৰমহা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ তুলনাত 50%, অৰ্থাৎ আধা দৰমহাহে বৃদ্ধি কৰিছে, যাক লৈ ऑंगनबाड़ी वर्कर कर रही है। आपने पहले देखा भी होगा शिशु मृत्यु दर कितनी थी देश के अंदर, मातृ मृत्यु दर कितनी थी देश के अंदर, वो आज 0 के बराबर है। जो इसमें अहम जो रोल है वो आंगनबाड़ी वर्कर का ही है। और जो ये पोलियो जैसी भयानक बीमारी इस देश से भगाने का काम किया है वो आंगनबाड़ी वर्कर ने ही किया है। और जो अभी एक देखा होगा, मंत्री संतरी सब अपने घरों में थे, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पे थी कोरोना काल में। ये एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका जो समाज के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर निभा रही है। जिस तरह गरीब तबके को भोजन भी देना है, हम भोजन देने का काम कर रहे हैं। सरकार ये एफआरएस को लेके कि इनका एफआरएस नहीं हुआ तो इनको भोजन नहीं देना, उसको लेके मतलब हाँ ऑनलाइन अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने वीडियो डाली भी है, बनाई हुई भी है, भेजेंगे सरकार के पास। क्या क्या हमें दिक्कत आ रही है फील्ड में। फोन हमें 2G के दे रखे, यहाँ तक कि हमारी जो हरियाणा की डायरेक्टर है
राजबाला कटारिया, तो वो मतलब ये कह रही है कि वीडियो में कि ये हमने 5G के फोन इनको दे रखे हैं, जो कि सरासर झूठ है। हम फोन ले भी रहे हैं अपने, उनमें नहीं होता कुछ। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो FRS का मुद्दा है, इसको या तो इसका सरलीकरण करे, जिस तरह हम पहले करते थे, हाजिरी लगवा लो, हमारे पे कुछ भी मतलब इस तरह का काम करवा लो। बाकी ये जो FRS का जो मुद्दा है, और अब आगे जो 3 से 6 साल के बच्चों का वो बोल रहे हैं कि इनकी 3 टाइम फोटो भेजनी है, इनकी अपार ID बनानी है, तो उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अभी हरियाणा में किसी ने ये काम नहीं किया। जो नींव की बात है, आंगनवाड़ी वर्कर जो समाज के लिए एक मतलब कहते हैं कि माँ का, शिक्षिका का, एक बहन का, एक दादी का, सभी फर्ज आंगनवाड़ी वर्कर पूरे कर रही है। ये जो FRS का कार्य है ना, ये सिर्फ सरासर जो कहते हैं ना हकदार हैं इस राशन के, उनको सरकार राशन नहीं देना चाहती। तो राशन नहीं देने के कारण अलग अलग स्कीमें निकाल रही है, FRS कर रही है, OTP है। जब हमारे देश में गरीब तबका है जिसके पास पहली बात तो फोन नहीं है, अगर किसी के पास फोन है तो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, जब आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो OTP नहीं जाएगा, इसलिए उनका राशन नहीं मिल पाएगा। तो ये सरकार जो लाभार्थियों को, अब तो हम ये कहेंगे कि वे हकदार है, क्योंकि जनता ही टैक्स ज्यादा भर रही है। कॉर्पोरेट 3% भर रही है तो 64% जनता टैक्स भर रही है, और उसी जनता को ये सरकार राशन देने से वंचित करना चाहती है। जबकि असली हकदार वो हेल्थ सेंटर में बच्चे, हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, और जो औरतें हैं, किशोरियां हैं। जब उनको एक अच्छा राशन ही नहीं मिलेगा तो क्या ऐसे कुपोषण दूर हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री क्या चाहते कि फोन पे पोषण का अभियान चलाते हैं। क्या फोन से कुपोषण दूर हो जाएगा और पोषण हो जाएगा देश में? जब धरातल पे वो 5 किलो राशन एक परिवार को दे रहे हैं, और बहन जो हमारी हकदार है राशन के, उनसे वो वंचित राशन को करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि 3 समय का राशन बेनिफिशरी को मिले, लेकिन सरकार वो एक समय का भी उनसे छीनना चाहती है, उनको भूखा रखना चाहती है, कुपोषित रखना चाहती है। तो ये फोन से तो कुपोषण दूर नहीं होगा। ये धरातल पर जब तक सरकार ये बजट हमारा नहीं बढ़ाएगी, और जब तक ये कुपोषण दूर नहीं होगा, जिस वर्कर ने ये फेस कैप्शन का काम नहीं किया, उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक डिप्रेशन दिया जा रहा है। अगर मालिया वर्कर किसी घर पे भी जाते हैं, मालिया सेंटर पे बुलाते हैं तो होता ही नहीं। अगर बेनिफिशियरी के घर पे भी जाते हैं, कहते हैं उनको वर्करों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, उन पे आघात किया जाता है। जब एक बात अपनी जान पे खेल कर अगर कोई जाए करने भी जाए तो OTP नहीं मिल पाता है। बार बार जब हम बेनिफिशियरी को परेशान करेंगे तो वो हमें भी फिर बोलती हैं कि आप 100 ग्राम राशन के लिए हमें इतना परेशान कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए ये राशन, क्योंकि सरकार मजबूर करना चाहती है उनको कि वो खुद ही मना कर दे राशन के लिए। क्योंकि जो FRS है ना, इसकी वजह से डिप्रेशन में काफ़ी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर चली गई हैं। क्योंकि सरकार अगर FRS करना चाहती है तो पहले, उससे पहले पोषण का जो वो सामान दे रही है उसकी गुणवत्ता को देखे। पूरा 25 दिन का राशन उसमें होना चाहिए सेंटर में। हम 1 तारीख को करें, 2 तारीख को करें, या 3 दिन हुए हों महीने में, पूरे 25 दिन का मैसेज उनके पास जाता है। जिसका भी FRS करते पूरे 25 दिन का जाता है। उसने 2 दिन लिया है, 3 दिन लिया है, तो वो मानने को तैयार नहीं होता कि भाई 25 दिन का दिखा रहा है, और उसमें एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कि भाई आपको नहीं मिला तो आप शिकायत करो। तो ये गलत है। एक तरफ तो आप 3 दिन का, तीसरे दिन ही हमसे FRS करवा रहे हो, दूसरा पूरे महीने का उसको राशन नहीं मिला, पूरे महीने का राशन जा रहा है, मैसेज जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत एक कदम है। और काफ़ी लोगों के पास जो है ना मोबाइल नहीं है। मोबाइल अगर किसी के पास है, OTP अगर जाता है तो वो OTP से संतुष्ट नहीं, क्योंकि इतना फ्रॉड हो रहा है हर जगह पे, तो OTP देने के लिए तैयार नहीं है जिनके पास है। और कई जगह पे तो मोबाइल होता नहीं, क्योंकि एक ही मोबाइल घर में होता है तो हस्बैंड ले जाता है या कोई ले जाता है, तो घर पे वो नहीं कर पाती हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आंगनवाड़ी में, पहले उनको सुधारा जाए, उसके बाद किया जाए। आंगनबाड़ी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी FRS का चल रहा है। दूसरा से सरकार, हम लोग की केंद्र सरकार कहती है पोषण माह मनाने, जबकि पोषण माह में हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ एक्टिविटी कीजिए, फोटो डालिए, दे दीजिए। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर हम फोटो दिखा के सिर्फ आम जनता अगर जान जाए उस चीज़ को, तो फिर आंगनबाड़ी चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग फोटो दिखा के सबको दिखा देते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ फोटो दिखा, उसको कुछ दो भाई, तब तो उसका कुपोषित दूर होगा। चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे धात्री महिला हो, चाहे किशोरी में बच्ची हो, या तो फिर कुपोषित बच्चे हैं। इसके चलते कुपोषित दर बढ़ रहा है। उसके बाद सरकार कहती है MTC ले जाओ, बच्चे को MTC ले जाओ। MTC जाने बच्चे
के गार्जियन ने जाने नहीं देते हैं कि नहीं, एक बच्चा वहाँ चला जाएगा, दूसरा बच्चा को मेरा घर में कौन देखेगा, उसकी माँ चली जाएगी तो उसके बच्चे को कौन देखेगा। MTC सदर हॉस्पिटल में जो कुपोषित बच्चों का देखभाल होता है, तो जिस माँ के 3 बच्चे या 4 बच्चे या 2 बच्चे हैं तो वो एक बच्चे को लेकर चले जाएंगे तो दूसरे बच्चे को कौन देखेगा। इसके चलते वो लोग MTC नहीं जाना चाहते हैं, उसके चलते उसका दबाव अलग है, कुपोषण का अलग दबाव है। पोषण सप्ताह मनाइए, पोषण माह मनाइए, कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी करके दिखा दीजिए। उसमें महिला लोग आना नहीं चाहती है, उनके पापा मम्मी नहीं आना चाहते हैं, उसके चलते भी हम लोग को मोबाइल में कोई गुणवत्ता नहीं। हम लोग को मोबाइल मिला झारखंड जिला में, लेकिन 3G का मोबाइल है, कोई काम नहीं होता है। और वो सरकार की कहना क्या है कि मात्र सेविका सहायिका 3 या 4 घंटा काम करती है, जबकि हम लोगों को 11 बजे रात भी सुपरवाइजर या CDPO द्वारा बोला जाता है कि फलना काम नहीं हुआ, उसका पहले रिपोर्ट करिए। तो इसके इस तरह से हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। हमारे यहाँ एक बार हम लोग अपना द्वारा गए थे DC सर के यहाँ, तो हमें DC सर बोले कि आप तो 3 घंटा काम ही करते हो, कितना पेमेंट खोजते हो। हमने बोला सर, एक गर्भवती महिला का 3रा माह जब उसका पेट में होता है तब से लेके बच्चे 6 साल के होते हैं तब तक हम लोग देखभाल करते हैं। यहाँ तक कि 10 बजे रात भी हम लोग को याद आता है अगर कि उसका कुछ नहीं छूटा हुआ तो उसको कॉल करके बोलते हैं कि आपका ये छूटा हुआ, कल आप आंगनबाड़ी में आइएगा, आपका ये करेंगे। तो हम लोग कैसे 3 घंटा काम किए हैं? हम लोग तो 24 घंटा ऑलरेडी तैयार रहते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को 3 घंटा कह के ना तो हम लोगों का मजदूर का दर्जा दिया जाता है, ना तो मिनिमम वेजेस दिया जाता है। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर का जो जीवन है बहुत मुश्किलों भरा, हम बोले ना कांटों पे चलने वाली जिंदगी है। इसी उम्मीद में कि एक दिन हमारे यहाँ दिन आएगा, और उसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रही है। और जिन जिन राज्यों में मजबूती से आंदोलन हुआ है, सभी जगह में एक जैसी परिस्थिति नहीं हो सकती। हमें मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत अपने आप को फक्र महसूस करता है कि हम CI2 के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। वो ऐसे में जहाँ पे हम कहने के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, हम हर जगह पे हमारा टीम काम कर रही है। इवन कि हम अंडमान में भी हमारा संगठन काम कर रहा है, पांडिचेरी में हमारा संगठन काम कर रहा है। एक राज्य है केरला, जहाँ पे बच्चों को अच्छा खाना, 3 टाइम का खाना, अच्छी बिल्डिंग, सब कुछ एक बिल्डिंग के नीचे, खिलौने, रंगीन, जो बच्चों को चाहिए वो है। दूसरे तमिलनाडु में भी बच्चों को 2 टाइम का खाना मिलता है, थोड़ा सा दूसरे से बेहतर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय मिलता है। तीसरा है पांडिचेरी में भी आंगनवाड़ी वर्कर को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का दर्जा दिया गया। बट बाकी आप